MCOM Part 2, Semester 4, we are doing IFRS of Mumbai University, obviously, NEP. IFRS Chapter 9. And Chapter 9 is dealing with what? Investment properties. What is investment property? Property. क्या लगता है, शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है? लॉन्ग टर्म है. फिक्स असेट है या करंट असेट्स है? फिक्स असेट्स है. टेंजिबल है या इंटेंजिबल है? टेंजिबल है. बराबर. क्या वापस वापस रिप्रोड्यूस होंगे या नहीं होंगे? वन टाइम. करेक्ट. तो इनको 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 डिस्प्ले या रिपोर्ट कैसे करना है वो जानना ज़रूरी है. यस. द ऑब्जेक्टिव्स, एक मिनट पहले क्या लेने का? लेजर लेने का. क्या पीयूष राणा तू भी ना कसम से. Objectives. The objectives of Indian Accounting Standard 40 are to prescribe accounting treatment for investment property, to prescribe related disclosure requirements. Okay. Scope. The scope of Indian Accounting Standard 40 includes what? Recognition of investment property, measurement of investment property, disclosure of investment property. ठीक है. Indian Accounting Standard 40 investment property does not apply to वही अपना जो पहले था. बराबर है. बायोलॉजिकल असेट्स, मिनरल राइट्स, क्योंकि ये जनरेट होते रहते. मैटर्स कवर्ड अंडर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 लीज वाले. क्लासिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी की बोलছে इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 40 एंड ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16. इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्या है? जहां पे आप खुद इन्वेस्ट करके प्रॉपर्टी बना रहे हो. बराबर है. उससे आप भाड़ा ले रहे हो, रेंट ले रहे हो. It is the property held for the following purpose. Why? To earn rents, for capitalization appreciation, to both earning rentals and capitalization appreciation, capital appreciation. The following are the examples of investment property. Which? Land held for long-term capital appreciation rather than short-term sale in ordinary course of business. Land held for currently undetermined future use. A business building owned by entity and leased out under one or more operating leases. A building that is vacant but held to be leased out under one or more operating leases. Property that is being constructed or developed for future use of investment property. ओके. तो ये सारे अपने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के अंडर आते हैं. तो कौन नहीं आते? खुद के लिए, रेसिडेंशियल पर्पस के लिए, नॉन कमर्शियल पर्पस के लिए, जिसका आगे कोई बेनिफिट नहीं है, वो एम्प्लॉय को रहने दे दिया तो वो आएगा क्या? नहीं. प्रॉपर्टी ही है लेकिन आप एम्प्लॉय को रहने के लिए दे रहे हो. द फॉलोइंग आर नॉट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टी इंटेंडेड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, in the process of construction, development or sale. ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, अब ये क्या चीज है? प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर फ्यूचर यूज ऑफ ओनर्स ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर फर्दर डेवलपमेंट एंड सब्सिक्वेंट यूज ऑफ ओनर्स ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, property occupied by employees, owner occupied property awaiting disposal, owner occupied property under the finance lease, property that is leased to another entity under a finance lease, and property construction for third party. ओके. तो ये सारे हैं जो नहीं आते हैं. और इन्हीं का उन्होंने टेबुलर फॉर्म में एक चार्ट बेसिस में अच्छे से बना के दे दिया है. एक्सप्लेनेटरी चार्ट. Land held for capitalization, is it investment property? Yes, under section 40 या accounting standard 40. Correct. Land held for resale? ना. Land held for currently undetermined future use, जिसका फ्यूचर यूज ही नहीं पता उसको आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पकड़ोगे क्या? ना. बिल्डिंग लीज अंडर फाइनेंस? यस. बिल्डिंग लीज अंडर ऑपरेटिंग लीज? नो. ऑपरेटिंग लीज है. बराबर है. वेकेंट बिल्डिंग will be leased under finance? Yes. For operating? No. Owner occupied property? No. Property held for sale in ordinary course of business? No. Property being constructed or developed for sale in ordinary course of business? No. Property being constructed or developed for use of owner occupied? No. Property being constructed or developed for the use of investment property? Yes. बराबर. Property employee को दिया? No. Property occupied अवेटिंग डिस्पोजल? नो. प्रॉपर्टी लीज अंडर फाइनेंस लीज? नो. मतलब ऑलरेडी कर्जे में उसको अपने लीज पे डाल दिया? नो. प्रॉपर्टी लीज अंडर ऑपरेटिंग लीज? ओके. लीज आई है तो आएगी. ओके. समझा? कमाने वाले हो. इशू रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्या है? इज इट पॉसिबल टू सेल द पोर्शन ऑफ अंडर फाइनेंस लीज सेपरेटली? यस.
अप्लाई इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 40 एंड 16 टू रिस्पेक्टिव नॉर्म। अगर है तो अप्लाई करो। इज इट पॉसिबल टू सेल द पोर्शन अंडर फाइनेंस? नो, तो नहीं, ओनर ऑक्यूपाइड पोर्शन में चला जाएगा। ओनर ऑक्यूपाइड पोर्शन सिग्निफिकेंटली यस, जजमेंट पे। ओनर ऑक्यूपाइड पोर्शन इनसिग्निफिकेंट है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 40 होल प्रॉपर्टी को लगा देंगे। ओके, एंसिलियरी सर्विस मतलब सुखापुरी सर्विस सब जो आती है, बराबर। एंसिलियरी सर्विस प्रोवाइडेड द ऑक्यूपेंट सिग्निफिकेंट है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 होटल के लिए है एग्जांपल फॉर। एंसिलियरी सर्विस प्रोवाइडेड टू द ऑक्यूपेंट, अगर मेरे स्टाफ को मैंने रखा है उधर सिक्योरिटी सर्विस दिया, मेंटेनेंस दिया, इनसिग्निफिकेंट है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 40। मैनेजमेंट ऑफ एंसिलियरी सर्विस यानी कि होटल केस में उन्होंने ये अलग अलग कंडीशंस दी हुई है। रिकॉग्निशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, फ्यूचर बेनिफिट है क्या? हाँ है, तो पकड़ सकते हैं। कॉस्ट मेजरमेंट कैन बी मेजर्ड। मेजरमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एट रिकॉग्निशन स्टेज, इनिशियल मेजरमेंट है, आफ्टर रिकॉग्निशन सब्सिक्वेंट मेजरमेंट है। ब्लैंक आ गया, मेरा जीवन कोरा कागज, ठीक है, कोरा ही नहीं रह गया, ये बहुत सारे आ गए एक साथ, बहुत कुछ लिखने के लिए। ओन्ड इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कॉस्ट, कॉस्ट क्या है? कॉस्ट जो आप पे करते हो नॉर्मली। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड एक्सपेंडिचर, वो एक्सपेंडिचर जो उस प्रॉपर्टी के लिए बने हैं। इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग: प्रोफेशनल फीस और लीगल फीस, प्रॉपर्टी ट्रांसफर टैक्सेस, अदर ट्रांजैक्शन कॉस्ट। क्या क्या नहीं आएगा? स्टार्टअप कॉस्ट, ऑपरेटिंग लॉस इनकर्ड बिफोर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अचीव्स द प्लान्ड लेवल ऑफ ऑक्यूपेंसी, abnormal wastage of material, labor and other resources incurred in construction, interest costs in case of deferred payment. Okay, in substance, owned investment property measured at fair price normally or PV of lease payment whichever is lower, acquired on deferred credit same in Indian accounting standard 16, acquired by exchange same as Indian accounting standard 16. Okay, आई डोंट थिंक यहाँ पे इसके ऊपर ज़्यादा कुछ क्वेश्चंस आएंगे आप लोग को, तो उतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट बाद में जो करते हैं वो, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी सब्सिक्वेंटली मेजर्ड बाय यूजिंग कॉस्ट मॉडल, ट्रांसफर ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, एन एंटिटी मे नीड टू कन्वर्ट एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इनटू ओनर्स ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी और वाइस वर्सा। ट्रांसफर शैल बी मेड वेयर देयर इज चेंज इन यूज, इट इज एविडेंस्ड बाय कमेंसमेंट ऑफ ओनर ऑक्यूपेंसी, commencement of development with a view to sale, end of the owner occupancy, commencement of operating lease to another party। ये चार कंडीशन है ट्रांसफर की। ओके, राइट अ नोट ऑन ट्रांसफर ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो डी रिकॉग्निशन, अब ये ऊपर के लिए था वो। डी रिकॉग्निशन क्या है? रिकॉग्नाइज करना मतलब कंसीडर करना, डी रिकॉग्निशन निकाल देना। डी रिकॉग्निशन टेक्स प्लेस अंडर द फॉलोइंग सिचुएशन। बेच ही दिया है तो मैं क्या करूँ? when entering into finance lease, when no future economic benefit आने वाला है तो कैपिटलाइज कुछ करने की जरूरत नहीं। समझा? सिंपल? यस, इवन दिस टॉपिक वॉज सिंपल। अच्छे से पढ़ो, अच्छे से प्रैक्टिस करो। या मुझे पर्सनल फाइनेंसेस का लोग पूछ रहे हैं, यूट्यूब पे कमेंट भी आ रहा है, पर्सनल मैसेज भी आ रहा है, लेकिन नहीं है मटेरियल। आप लोग अगर स्कैन करके भेज देते, अभी भी अगर भेज देते हो तो भेज दो। आई विल ट्राई माई बेस्ट, भले गला मेरा बैठ जाए, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको बना के दे दूँ। या जितना मुझे समझ में आएगा उतना, मैंने वो कभी सब्जेक्ट सिखाया भी नहीं है, बट आई विल ट्राई। अगर आप लोग स्कैन करके PDF भेज देते हो तो। थैंक यू।